عمران خان یوں تو ایک جسم میں ایک جان ہے، لیکن وہ کرکٹ اسٹار، جنونی، فائٹر، انسان شناس، فلنتھراپسٹ، سیاستدان، لیڈر، سوشل میڈیا سینسیشن جیسے القاب کے ساتھ آج وہ کروڑوں دلوں کی دھڑکن بن چکا ہے۔ ناظرین، شوکت خانم اور اکرام اللہ خان نیازی کے گھر 5 اکتوبر 1952 کو پیدا ہونے والے عمران خان کی کہانی کافی دلچسپ اور تجسس سے بھری ہوئی ہے، جسے مختلف اوقات پر مختلف ویڈیوز یا ڈاکیومنٹریز میں بیان کیا جا چکا ہے۔ لیکن آج کے اس ویڈیو میں ہم عمران خان کے ان ناقابل تذکیر اقدامات پر غور کریں گے جس سے قومی و بین الاقوامی شہرت ملی۔ مسٹر انچن سنگھ کی ویڈیوز میں ایک بار پھر خوش آمدید و سواگت۔ ناظرین، 1996 میں عمران خان نے پاکستان تحریک انصاف یعنی PTI پارٹی کی بنیاد رکھی، جس کا مقصد عدل، اقتصادی خود مختاری اور بدعنوانی کے خلاف جدوجہد پر مبنی فلاحی ریاست کا قیام تھا۔ اس سیاسی پارٹی کے قیام کے بعد انہیں کافی جدوجہد کرنی پڑی۔ عمران خان کی پارٹی کو 2013 کے الیکشن سے پہلے کوئی بھی خاطر خواہ کامیابی نہ مل سکی، لیکن ان کی مستقل مزاجی، جنونیت اور عوام دوست ثابت کرنے پر انہیں 2013 کے عام انتخابات میں عوامی ووٹوں میں دوسری اور نشستوں کے لحاظ سے قومی اسمبلی میں تیسری بڑی پارٹی بن کر ابھری۔ PTI نے خیبر پختونخوا میں صوبائی حکومت بھی بنائی۔ ناظرین، اس کے بعد 2018 کے عام انتخابات میں PTI قومی اسمبلی میں سب سے زیادہ نشستیں جیتنے والی پارٹی بنی اور KT کی تاریخ میں پہلی بار کوئی جماعت مسلسل دوسری مرتبہ حکومت بنانے جا رہی تھی اور ایسے 176 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ ان کی یہ کامیابی پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر ایک اہم تبدیلی سمجھی جانے لگی۔ ناظرین، یہ سب تب ممکن ہوا جب عمران خان نے اپنی سیاسی زندگی کے دوران پاکستان میں بدعنوانی کے خلاف جدوجہد نے خود کے سیاسی نظام سے ناراض پاکستانی عوام میں مقبولیت حاصل کی۔ ناظرین، اب عمران خان اقتدار میں آ چکے ہیں اور ہم اب دیکھتے ہیں ان کے کچھ اقدامات۔ نمبر 1، اکنامک ریفارمز یعنی معاشی اصلاحات۔ ناظرین، جب عمران خان نے 2018 میں حکومت لی تو اس وقت معیشت 5.8% کی شرح سے بڑھ رہی تھی، جس پر قرضوں کی ادائیگی اور معاشی عدم توازن کی وجہ سے یہ 2019 میں 1.9% اور 2020 -0.5% تک آ پہنچی، جس کو ریکارڈ قرضوں کی ادائیگی اور مؤثر معاشی اقدامات کے بعد 2022 میں 6% شرح تک پہنچایا گیا۔ ان اقدامات میں ٹیکس اصلاحات، انرجی سیکٹر میں اصلاحات اور ایز آف ڈوئنگ بزنس یعنی کاروبار کرنے میں آسانی پیدا کرنا ہے۔ انہوں نے سماجی تحفظ اور غربت میں کمی کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے، جس میں نمبر 1 ہے احساس پروگرام، جو 2019 میں شروع کیا گیا۔ احساس پروگرام پاکستان کا سب سے بڑا سوشل سیفٹی اور غربت مٹانے کا منصوبہ ہے۔ احساس پروگرام پاکستان میں غربت اور عدم مساوات کے خلاف کوششوں میں ایک سنگ میل اقدام ہے، ایک جامع حکمت عملی کے ذریعے جو براہ راست مالی امداد، صحت، تعلیم اور روزگار کے مواقع کو شامل کرتی ہے۔ اس کا مقصد سماج کے سب سے زیادہ کمزور طبقات کو اٹھانا ہے، اگرچہ اس میں اہم چیلنجز ہیں۔ پروگرام کے جامع نوعیت اور جدت اور شفافیت کے لیے عزم مضبوط بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ نمبر 2، کیش ٹرانسفر۔ احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کے ذریعے کووڈ-19 وبا سے متاثر لاکھوں خاندانوں کو مالی مدد فراہم کی گئی۔ احساس نشو و نما۔ بچوں میں غذائی قلت کو دور کرنے کے لیے کمزور خاندانوں کو مشروط نقد منتقلیوں پر توجہ دی گئی۔ نمبر 4، کامیاب جوان پروگرام۔ کامیاب جوان پروگرام کا مقصد نوجوانوں کو روزگار کے مواقع اور کاروباری تعاون فراہم کرنا تھا، جس میں قرضے، مہارت کی ترقی اور اسٹارٹ اپ انکیوبیشن شامل ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ فائنینشل انکلوژن اینڈ ڈیجیٹل اکنامی پر بھی کام کیا گیا، جس میں نمبر 1 ہے ڈیجیٹل پاکستان انیشیٹو۔ حکومتی آپریشنز میں کارکردگی، شفافیت اور سروسز ڈیلیوری کو بہتر بنانے کے لیے ڈیجیٹل گورننس کو فروغ دیا گیا۔ اس کے علاوہ ای کامرس کی بھی حوصلہ افزائی کی گئی۔ نمبر 2، روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ۔ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ اس لیے متعارف کرائے گئے تاکہ اوورسیز پاکستانی اپنی مالیات کا انتظام کر سکیں اور سادہ ڈیجیٹل بینکنگ خدمات کے ذریعے پاکستان میں سرمایہ کاری کر سکیں، جس سے معیشت بھی بڑھے گی اور
हवाला हुंडी के जरिए भेजे जाने वाली रकम बैंकिंग चैनल के थ्रू आएगी। नाजरीन, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की के लिए इनकी हुकूमत ने नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम और एमनेस्टी स्कीम फॉर कंस्ट्रक्शन जैसे मंसूबे लॉन्च किए। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का मकसद तामीराती शोबे के लिए टैक्स में रियायतों और ज़वाबती ताउन समेत मराद के जरिए सस्ती हाउसिंग फराहम करना। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए एक एमनेस्टी स्कीम मुतारिफ कराई गई, जिससे गैर ऐलान शुदा आमदनी का ऐलान मुमकिन बनाया गया। नाज़रीन, अमल दरामद के मसाइल, मुआशी सुस्त रवी और कर्ज़ों के बोझ के बावजूद इमरान खान की हुकूमत ने मईशत को मुस्तहकम करने में कामयाब रही और महंगाई में भी कमी की। नंबर 2, इमरान खान पेंडेमिक एक्शंस। इमरान खान की हुकूमत के कोविड-19 के दौरान किए गए इक़दामात सेहत, मईशत और समाजी शोबे पर मरकूज़ थे। स्मार्ट लॉकडाउन के हदफी नुक्ता नज़र कमज़ोर तबके को बराह रास्त माली मदद करना, सेहत की देखभाल के बुनियादी ढांचे के तोसी और जामे वैक्सीनेशन मुहिम वबा से निपटने में अहम साबित हुए। इन कोशिशों ने न सिर्फ पाकिस्तान की वबा के दौरान रहनुमाई फराहम की, बल्कि आलमी तौर पर मौसर साबित हुए और इसे आलमी पजीराई भी मिली। आलमी इदारा सेहत, अक़वाम मुत्तहिदा और बैनुल-अक़वामी मीडिया ने इसे कवरेज दी और इस तरह की स्ट्रेटजी को सराहा और इसे मौसर करार दिया। नंबर 3, इन्वायरमेंटल इनिशिएटिव यानी माहौलियाती इक़दामात। इमरान खान की हुकूमत ने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और पायदारी को अपनी तरजीहात में शामिल किया। उन्होंने मुख्तलिफ इक़दामात और प्रोग्राम्स मुतारिफ कराए ताकि माहौलियाती तब्दीलियों से निपटा जा सके और पाकिस्तान की कुदरती वसाइल को महफूज किया जा सके। इन अहम माहौलियाती इक़दामात से नंबर 1 है बिलियन ट्री सुनामी। खैबर पख्तूनख्वा में बिलियन ट्री सुनामी मनसूबे का आगाज़ किया गया, जिसकी कामयाबी के बाद इस मनसूबे को मुल्क गिर सतह पर 10 बिलियन ट्री सुनामी के नाम से बढ़ाया गया ताकि 10 अरब दरख्त लगाए जा सके। नंबर 2, क्लीन ग्रीन पाकिस्तान। कचरे के मुनासिब तरीके से तलफी और साफ पानी की फराहमी जैसे मसाइल को हल करने के लिए ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया। नंबर 4, मौसमियाती तब्दीली पर पॉलिसियाँ। कार्बन अखराज में कमी के लिए पॉलिसियाँ बनाई गई और काबिल तजदीद तवानाई के ज़राए को फ़रोग़ दिया गया। नेशनल एमरजेंसी प्लांटेशन डे मनाया गया ताकि सारी कौम मिलके लाखों दरख्त लगाए। इमरान खान की हुकूमत ने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से मुतअद्दिद अहम इक़दामात किए जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलमी सतह पर मौसर साबित हुए। अक़वाम मुत्तहिदा, आलमी बैंक, वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम और बैनुल-अक़वामी मीडिया ने इसे खूब सराहा। इन इक़दामात ने माहौलियाती तब्दीलियों के असरात को कम करने, जंगलात, हयातियाती तनों का तहफ़्फ़ुज़ और अवामी शमूलियत को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा किया। इनकी कोशिशों की बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम किया गया और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के एक मिसाल के तौर पर सराहा गया। नंबर 3, जुडिशल रिफॉर्म्स। इमरान खान की हुकूमत ने अदालती निज़ाम को बेहतर बनाने और इंसाफ की फराहमी को मौसर और शफाफ बनाने के लिए मुतअद्दिद इक़दामात किए। इन इक़दामात का मकसद अदालती निज़ाम की इस्लाह और आवाम को तेज़, सस्ता और बर वक्त इंसाफ फराहम करना था। इस्लाहात में नंबर 1 है अदलिया की खुद मुख्तारी, जिसमें यह यकीनी बनाया गया कि जजों की तकरीरी का अमल साफ और शफाफ और मेरिट पर मबनी हो। नंबर 2, मॉडल कोर्ट्स का क़याम। फौरी इंसाफ की फराहमी के लिए मुल्क भर में मॉडल कोर्ट्स कायम की गई, जिन्होंने मुक़दमात को तेज़ तर निपटाने में मदद फराहम की। मॉडल कोर्ट्स ने तेज़ी से मुक़दमात के फैसले के ई कोर्ट्स और डिजिटलाइजेशन, अदालती निज़ाम को डिजिटलाइज किया गया। मुक़दमात के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और समात का आगाज़ किया गया। पुलिस रिफॉर्म। पुलिस के तहकीकाती अमल को बेहतर बनाने के लिए तरबियती प्रोग्राम्स और जदीद तहकीकाती टेक्निक को मुतारिफ करवाया गया। पुलिस और अदलिया के दरमियान ताउन को फ़रोग़ देने के लिए इक़दामात किए गए ताकि मुक़दमात की तहकीक और समात में तेज़ी लाई जा सके। और इसके अलावा ख़वातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के क़वानीन और कैदियों के हुकूक के बारे में भी मुख्तलिफ क़वानीन बनाए गए। इन अदालती इस्लाहात ने पाकिस्तानी अदालती निज़ाम में कुछ अहम तब्दीलियाँ लाई और आवाम को इंसाफ की फराहमी में बेहतरी के लिए इक़दामात किए। अगरचा चैलेंजेस का सामना भी रहा, मगर इनकी हुकूमत ने अदालती निज़ाम को शफाफ, तेज़ और मौसर बनाने की समत में अहम पेशरफ्त की, जिसमें कुछ कामयाबियाँ और कुछ नाकामियाँ भी इनके खाते में आईं। नंबर 5, फॉरेन पॉलिसी। इमरान खान की खारजा पॉलिसी ने पाकिस्तान की आलमी हैसियत को मजबूत बनाने, इलाकाई तनाज़ात को हल करने और मुफीद बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात कायम करने पर तवज्जो मरकूज़ की। नंबर 1 है कश्मीर का मसला। इमरान खान ने बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म्स पर मुस्तकिल तौर पर कश्मीर का मसला उजागर किया। इनकी कोशिशों ने भारतीय मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियों पर आलमी तवज्जो मबजूल करवाई। खास तौर पर अगस्त 2019 में भारतीय हुकूमत की तरफ से आर्टिकल 370 के मनसूखी के बाद उन्होंने उस मसले को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली और आलमी रहनुमाओं के साथ मुलाकातों में उठाया, जिसने उसे बैनुल-अक़वामी तवज्जो में बरकरार रखा।
for the world, which is why I repeat I'm here. Because I'm warning you, it's not a threat. It's a fair worry that where are we headed? And I've come here to tell the UN, you've got to, this is a test for the United Nations. You are the one who guaranteed the people of Kashmir the right of self-determination. They are suffering because of that. And this is the time. This is the time not to appease like in 1939 appeasement took place. This is the time to take action. And number one action must be that India must lift this inhuman curfew, which has lasted for 55 days. It must free. It must free. नंबर 2, अमेरिका पाकिस्तान ताल्लुकात। खान की क़यादत में पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को बहाल करने की कोशिश की। अफगानिस्तान और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जैसे मसाइल पर कशीदगी के बावजूद ये ताल्लुकात कुछ बेहतर हुए। इनकी हुकूमत ने अमेरिका और तालिबान के दरमियान अमन मुज़ाकरात में सहूलत फराहम की, जिसके नतीजे में 2020 में दोहा मुआहदा हुआ। इस इक़दाम को अफगानिस्तान से अमेरिकी इनखला में अहम समझा गया और इसने इलाकाई इस्तेहकाम में पाकिस्तान के किरदार को उजागर किया। नंबर 3, सऊदी अरब और खलीजी रियासतों से ताल्लुकात। खान की हुकूमत ने सऊदी अरब और दीगर खलीजी रियासतों के साथ करीबी ताल्लुकात बरकरार रखे, जिससे इक्तिसादी इमदाद और सरमायाकारी हासिल हुई। ये ताल्लुकात पाकिस्तान के इक्तिसादी इस्तेहकाम के लिए अहम थे, खासतौर पर माली बहरान के वक्त। मिसाल के तौर पर सऊदी अरब ने माली इमदाद और मौखर शुदा तेल की अदायगी की सहूलत फराहम की, जिससे पाकिस्तान को अदायगियों के तवाज़ुन के बहरान को संभालने में मदद मिली। नंबर 4, ईरान सऊदी अरब सालसी, यानी ईरान सऊदी अरब मीडिएशन। इमरान खान ने खलीज के खत्ते में कशीदगी को कम करने के लिए ईरान और सऊदी अरब के दरमियान सालसी की कोशिशें की। अगरचे इन कोशिशों की कामयाबी महदूद थी, लेकिन पाकिस्तान का किरदार एक मुमकिन सालिस के तौर पर नुमाया हुआ और इसकी ख्वाहिश को अमन व इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने की अक्कासी की। नंबर 5, हिंदुस्तान पाकिस्तान ताल्लुकात। जारी कशीदगी के बावजूद, खास तौर पर कश्मीर के मसले पर खान के हुकूमत ने हिंदुस्तान के साथ बातचीत करने की कोशिश की। 2019 में करतारपुर राहदारी का इफ्तिताह किया, जिससे भारतीय सिख यात्रियों को पाकिस्तान में अपने मुक़द्दस तरीन मकामात में से एक की ज़ियारत करने की इजाज़त दी गई। एक अहम एतमाद साजी का इक़दाम था। इसने सियासी इख्तिलाफ के बावजूद लोगों के राब्ते को बेहतर बनाने की पाकिस्तान की ख्वाहिश को ज़ाहिर किया। नंबर 6, पाकिस्तान अफ़गान अमन अमल। पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान अमन अमल में अहम किरदार अदा किया। अफ़गान हुकूमत और तालिबान के दरमियान बातचीत में सहूलत फराहम की। खान की हुकूमत ने एक पुरअमन और मुस्तहकम अफ़गानिस्तान की अहमियत पर जोर दिया। मुज़ाकरात की मेज़ पर तालिबान को लाने में पाकिस्तान का असर रसूख अहम था, जिसके नतीजे में बैन अल अफ़गान मुज़ाकरात हुए। नंबर 7, माहौलियाती सिफारतकारी। इमरान खान की हुकूमत ने आलमी माहौलियाती फोरम्स पर फ़ाल तौर पर हिस्सा लिया। बिलियन ट्री सोनामी जैसे मंसूबे को आलमी सतह पर पजीराई मिली और पाकिस्तान को शजरकारी और माहौलियाती इक़दाम में रहनुमा के तौर पर पेश किया गया, जिसने आलमी माहौलियाती तंजीमों से तारीफ हासिल की। नंबर 8, मुस्लिम ममालिक के साथ राब्ते। खान ने दीगर मुस्लिम अक्सरियती ममालिक के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात को मजबूत करने की कोशिश की। इस्लामी तावन तंजीम OIC में इनकी फ़ाल शिरकत और मुस्लिम दुनिया को मुश्तरका मसाइल जैसे इस्लामोफोबिया पर मुतहद करने की कोशिशें काबिल ज़िक्र थी। उन्होंने मुस्लिम कम्यूनिटी को दरपेश आलमी चैलेंजेस के लिए मुश्तरका रद्द-ए-अमल का मुतालबा किया। नंबर 9, वसी तर बैन अल-क़ौमी ताल्लुकात। इमरान खान ने रवायती इत्तेहादियों से आगे पाकिस्तान के बैन अल-क़ौमी ताल्लुकात को मतनू बनाने की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने अफ्रीका, लातीनी अमेरिका और जनूबी मशरकी एशिया के ममालिक के साथ ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश की, जिसका मकसद तिजारत और सरमायाकारी के लिए नई मंडियों को खोलना था। मजमूई तौर पर इमरान खान की खारजा पॉलिसी का मकसद पाकिस्तान के बड़े आलमी ताकतों के साथ ताल्लुकात को मुतवाज़न करना, इलाकाई कशीदगी को संभालना और दुनिया भर में इक्तिसादी और सफारती रवाबित को बढ़ाना था। इन कोशिशों ने पाकिस्तान की बैन अल-क़ौमी हैसियत में इजाफा किया और कौमी सलामती और इक्तिसादी तरजीहात को हल किया। लास्ट बट नॉट लीस्ट, करप्शन या बदعنوانی। इमरान खान तवील अरसे से पाकिस्तान में करप्शन के सख्त नाक़िद रहे। उनका करप्शन के खिलाफ मौक़िफ़ 1996 में अपनी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के क़याम के बाद से उनके सियासी एजेंडा का मरकज़ी सतून रहा है। उन्होंने हमेशा करप्शन के पाकिस्तान की तरक्की, हुक्मरानी और अवामी एतमाद पर मनफी असरात को उजागर किया। इमरान खान ने करप्शन के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी की वकालत की है। उन्होंने एहतसाब आलमगीर की हिमायत की है। इमरान खान ने अदालती और हुकूमती
हुकूमती इदारों में इस्लाहत की हिमायत की है ताकि उनकी करप्शन के खिलाफ मौसर जंग की सलाहियत को मजबूत किया जा सके। उन्होंने सरकारी मामलात और फैसला साजी के अमल में शफाफियत को फ़रोग दिया ताकि करप्शन के मौके को कम किया जा सके। उनकी हुकूमत ने कौमी एहतसाब ब्यूरो यानी नैब को ज़्यादा आज़ादाना और मौसर तरीके से करप्शन केसेस की तहकीकात और उनका पीछा करने के लिए काम करने की कोशिश की है। इनके दौर में नैब ने बड़े तादाद में करप्शन केसेस की तहकीकात की, जिनमें से बहुत से हाई प्रोफाइल केसेस भी शामिल थे। नैब ने अपने क़याम से लेकर 2018 तक तकरीबन 1.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मजमूई वसूलियाँ की, जबकि इमरान खान के सिर्फ 3 साल दौर में 3.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर वसूल किए, जो कि नैब की एक वाज़ेह कामयाबी है। पीटीआई हुकूमत ने विसल ब्लोअर्स को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कानून साजी मुतारफ़ कराई, जिससे अफराद को करप्शन की इतलात देने की हौसला अफजाई की गई। अवामी खिदमात और ख़रीदारी के अमल में शफाफियत बढ़ाने और करप्शन के मौके को कम करने के लिए डिजिटल गवर्नेंस इक़दामात मुतारफ़ कराए गए। कानूनी फ्रेमवर्क के ज़रिए लूटी हुई कौमी दौलत और बैरून मुल्क छुपाए गए असासों की बाज़ाबी की कोशिशें की गई। करप्शन के मनफी असरात और हुक्मरानी में दयानतदारी और एहतसाब की अहमियत के बारे में अवामी आगाही बढ़ाने के लिए मुहिम्मात शुरू की गई। करप्शन के खिलाफ इमरान खान का गैर मुतज़्ज़ल मौक़िफ़ इनके सियासी कैरियर की एक खास खुसूसियात रहा है। इनकी एहतसाब, शफाफियत और इदारा जाती इस्लाह को फ़रोग देने की कोशिशें पाकिस्तान में करप्शन के गहरे मसले से निमटने में अहम पेशरफ्त हैं। अगरचा चैलेंजेस मौजूद हैं, इनकी क़यादत में उठाए गए कई इक़दामात एक ज़्यादा मुनसफ़ाना और शफाफ हुकूमती निज़ाम की तश्कील की अज़्म का सबूत है। नाज़रीन, हमने इस वीडियो में इमरान खान के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान ने कई अहम कामयाबियाँ हासिल की, जिनकी तफसीलात हमने इस डॉक्यूमेंट्री में पेश की। And when a nuclear armed country fights to the end, it will have consequences far beyond the borders. It's faced with a choice. Either you surrender or you fight for your freedom till death. What will we do? I ask myself this question. And my belief is, La ilaha illallah, there is no God but one. And we will fight. उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो लाइक करके अपना प्यार दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये काम आपके लिए कुछ सेकंड्स का है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी उम्मीद की किरण है। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करके हमारे लिए प्यार बटोरिएगा। कमेंट सेक्शन में अपने पाव का शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।